Hello learners, welcome to my channel. Today we are going to learn quadratic equation. In previous quadratic polynomial already discussed in polynomial classes. Now before discuss the quadratic equation, introduce some terminology and to quadratic equation from quadratic polynomials. So what is quadratic polynomial? Already discussing quadratic polynomial in mathematics. Quadratic polynomial is a polynomial of second degree, यानी कोई भी सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है. सिमिलर वे ए पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड a not equal to 0 is called a quadratic polynomial. Basic in general we can say ax square plus bx plus c is a general form या standard form of quadratic polynomial. Now discuss about the quadratic equation. When we equate a quadratic polynomial to a constant, we get a quadratic equation. That means कि किसी भी quadratic polynomial को अगर इक्वल साइन के साथ इंट्रोड्यूस या रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू ए कांस्टेंट टर्म्स हो या इक्वल टू एनी टर्म्स, जीरो या एल्जेब्रिकल इक्वेशन भी, एल्जेब्रिकल टर्म्स भी हो सकता है. तो अगर इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल साइन के साथ इंट्रोड्यूस करें इक्वल टू ज़ीरो या इक्वल टू एनी कांस्टेंट, सच टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन बिकम या सेड एट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए फॉर्म पी एक्स इक्वल टू सी, वेयर Px is a polynomial of degree 2 and C is a constant is called quadratic equation. Now some example are given, different examples. These are example of the quadratic equation. So the standard form of quadratic equation, similar way a standard form of quadratic polynomial in the generally ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form या general form of quadratic equation where a, b and c are real number and a not equal to 0. A is the coefficient of x square. It is called the quadratic coefficient. B is the coefficient of x. It is called the linear coefficient, or C is the constant term. So this is the standard form of quadratic equation. अब कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लिए हैं जो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं. चेक वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सम एक इक्वेशन हम कंसीडर किए हैं, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है. तो एक्स माइनस टू ऑफ होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस 3 एक ओवरऑल टू इक्वेशन है, एक तरफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, अनदर ऑफ लीनियर फॉर्म है. अब ये दोनों को फाइनली जब डेरिवेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो एक कैलकुलेशन करके क्या एक जो लास्ट फॉर्म होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा कि नहीं, इस चीज़ को हम अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं क्या वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं. यही इस क्वेश्चन का मतलब मेन थीम है.
तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि जो आपका गिवन क्वेश्चन है LHS x माइनस टू ऑफ होल स्क्वायर प्लस वन, इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव. दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर कैन बी राइट. अब इस पूरे जनरलाइज करेंगे क्योंकि ये तो LHS पार्ट हुआ. RHS पार्ट हमारा 2x माइनस थ्री है. ओवरऑल इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बिकम ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ quadratic equation form where ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of quadratic equation, or this form is also become x square minus 6x plus 8 equal to 0 is the also form of quadratic equation. So that this given question is the form of quadratic equation. Similarly another आप क्वेश्चन आप के एक टेक्स्ट बुक में और एग्जाम्पल में है, आप बना सकते हैं. सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ डिस्कस about how to solve a quadratic equation. Very important concept related to the examination point of view. There are three ways to solve quadratic equation. First, factorization method. Another is complete the squaring method and quadratic formula method. There are three ways to solve quadratic equation. Solution of quadratic equation. In general, a real number alpha is called a root of quadratic equation. X square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0. In this given quadratic equation form where alpha is a root of equation, if putting the value alpha in given quadratic equation or satisfied the given equation, so that alpha is the root of the given quadratic equation. If a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, we also say that x equal to alpha is a solution of quadratic equation, or that alpha satisfied the quadratic equation. Note that the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same. So in quadratic polynomials we are say zeros, find the zeros, and in quadratic equation find the roots, meaning are same. A quadratic equation can have two distinct roots, two equal roots, or real roots may not exist. Similar way जो कि आपको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वहाँ पे आपका टू डिस्टिंक्ट जीरो कहते थे, टू इक्वल जीरो कहते थे, और नो एनी जीरोस, तो सिमिलर वे आपको यहाँ पे रूट के रिस्पेक्ट में कहेंगे. ग्राफिकली द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are the points where the graph of quadratic polynomial cut the x-axis. अब इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो ऑलरेडी वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ग्राफिकली रिप्रेजेंट ए
parabolic form. Parabolic representation of parabolic shape, that is upward and downward graph. अब एक ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर जिस पॉइंट पे जितने पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर केवल ओनली 1 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट या कट कर रहा है तो ओनली 1 रूट्स होंगे। और किसी भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि उस केस में कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ए आपका है, जिसमें 2 ग्राफेज हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सिमिलर वे जैसे सम ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इज इक्वल टू उसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए is also a relation between constant and coefficient is equal to constant term alpha into beta equal to constant term divided by coefficient of x square. Graphical representation of roots in all graph of ax square plus bx plus c equal to 0 if a greater than 0। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 दैट इज़ पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो सभी अपवर्ड पैराबोलिक होगा। दैट मीन्स कि वो उसके ग्राफ जो होंगे अपवर्ड शेप में होंगे। यहाँ पे अगर इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अपवर्ड ग्राफ जो है वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन केस 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अनदर आपके ग्राफ जो है वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पे, दैट मीन्स कि इस केस में 1 रूट्स होंगे। और अनदर ओ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में नो रियल रूट्स होंगे। यानी ग्राफिकली द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस। इस केस में ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 इक्वल रूट्स और नो रियल रूट्स। अभी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था वो ए ग्रेटर देन के केस में, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ए लेस देन 0 के केस में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए लेस देन 0 के, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो। फॉर एग्जांपल अगर हम अनदर एग्जांपल लें कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब इसका ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करेंगे जनरल वे में तो उसके जो ग्राफ होंगे क्योंकि जिसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डाउनवर्ड शेप में होंगे, वो पैराबोलिक फॉर्म होगा और वो डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ होंगे। यहाँ पे भी आपका जो ग्राफ दिख रहा है, अब ये डाउनवर्ड ग्राफ है, इसमें 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उस 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, और अनदर ग्राफ आपका किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इन दिस केस आल्सो 3 ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट, और सेम वे कि 2 रियल रूट्स होंगे, 1 रियल रूट्स होंगे एंड नो रियल रूट्स होंगे। नाउ डिस्कस अबाउट द solving of the method of the given quadratic equation. One of the first method by factorization method. In factorization method process already we are discussed in previous classes, in class 8, in class 10th. Factorization method, in this method is first a split method.
तो सबसे पहले हम इस केस में इस तरह की प्रॉब्लम में फैक्टराइजेशन प्रोसेस के थ्रू करने के लिए जो इसके मिडिल टर्म्स 5x हैं इसको ब्रेक करते हैं। अब ऐसे टू टर्म्स में इसको ब्रेक करिए जिससे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे इस फर्स्ट टर्म और एक कांस्टेंट टर्म ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज फर्स्ट वेरीफाइड दैट देन अरेंज द मिडिल टर्म्स। तो इन दिस केस -2x और -3x के रूप में इसको -5x को स्प्लिट किया, जिस केस में -2x और -3x कैलकुलेट द 6x स्क्वायर, सेम वे 2x स्क्वायर और 3x के कैलकुलेशन के बराबर है। सो 2x स्क्वायर -5x + 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर -2x - 3 + 3 इक्वल टू, अब इस केस में अब यहाँ पे 2x स्क्वायर एंड -3x + 3। अब इस दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है पहले कॉमन टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x कॉमन है, 2x स्क्वायर -2x में 2x कॉमन, तो गेटिंग 2x × x - 1। सेम वे -3 + 3x -3x + 3 में ये दोनों में फिर क्या कॉमन है, तो हम -3 को कॉमन कंसीडर किए। अब यहाँ पे x - 1 दैट इज बिकम ए इन कॉमन फॉर्म 2x × x - 1 -3 × x - 1, वेयर x - 1 और x - 1 अब ये दोनों में कॉमन टर्म्स हो गया। तो x - 1 कॉमन ले लिए तो बच गया 2x जो आपका 2x हो गया, और यहाँ पे -3 तो -3, तो 2x स्क्वायर -5x + 3 को फाइनली फैक्टराइज किए तो वी गेटिंग 2x - 3 × x - 1। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन become in factor form 2x - 3 × x - 1। Now अब इस इक्वेशन को, क्योंकि अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि आपका ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। आपका गिवन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में देखें कि गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर -5x + 3 = 0 कैन बी rewrite as 2x - 3 × x - 1 = 0. So the value of x for which 2x square -5x + 3 = 0 are the same for which 2x - 3 × x - 1 = 0. अब ये दोनों का कैलकुलेशन इक्वल टू 0 कब होगा, जब 2x - 3 = 0 हो जाए, या फिर आपका x - 2 = 0 हो जाए। तो ये दोनों को अलग अलग दो फैक्टर्स हैं, तो हम अलग अलग कंसीडर किए कि आइदर 2x - 3 = 0 और x - 2 = 0। तो इस केस में आपका 2x - 3 = 0 gives x = 3/2. Similarly, x - 1 = 0 gives x = 1. So x = 3/2 and x = 1, these are the root of the given quadratic equation. So therefore we can say x = 3/2 and x = 1 are the solution of given quadratic equation. In another words, 1 and 3/2 are the root of the given quadratic equation. So these are the basic process of the find quadratic equation, given quadratic equation of the roots. यानी रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए ए फैक्टराइजेशन मेथड का प्रोसेस के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सम प्रॉब्लम्स आर गिवन कि आपको कौन कौन सा इक्वेशंस इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है,
उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्बल आपका स्टेटमेंट है लैंग्वेज के रूप में, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूप में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इससे रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए गिवन है, दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट कीजिए। आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके इजली सोल्व कर लेंगे। और जो भी हम अभी प्रोसेस डिस्कस किए हैं, इसको आप समझने के लिए एक दो बार इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको आप समझें। ओके, थैंक्स ऑल लर्नर्स।